Hello students, welcome to the online classes. My name is Nidhi Dixit. Today we will continue with the chapter number 4, that is heat. So students, in the previous class we have studied about heat, and we have also studied or we have also learned how you feel things like it is cold and it is hot, and we have also studied about the clinical thermometer, right? So क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमने देखा था फ़ारेनहाइट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थर्मोमीटर बनाया था जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के काम में आता था, जिसमें कि जो टेम्परेचर रेंज हुआ करती थी वो कहाँ से कहाँ तक हुआ करती थी, वो होती थी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर कहाँ तक हुआ करती थी, वो होती थी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, राइट। और हमने देखा कि जो डिग्री सेल्सियस पर जो स्केल था, डिग्री सेल्सियस में जो थर्मोमीटर हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, जो कि हम अपना टेम्परेचर मेजर करने के काम में लेते हैं, उसकी टेम्परेचर रेंज होती है 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक। और हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। If you have temperature like above 32 degree Celsius, then you can say that you might be having fever, okay, but the 37 degree Celsius is the average body temperature, when you measure the body temperature of all the family members at a particular time for several days, you will notice that the temperature doesn't remain same all the time, because each and everybody has different temperature, different normal body temperature, but you can say that on an average most of the people have 37 degrees Celsius as the normal body temperature. Okay, so we have studied about the clinical thermometer. It was having a mercury bulb at the bottom, okay, and it was having mercury bulb at the bottom, and it was having a kink which runs throughout the length of the glass tube, okay, and temperature was from 35 degrees Celsius to 43 degrees Celsius, and the normal temperature is 37 degrees Celsius, okay. So it was having a kink. Whenever you put clinical thermometer in your mouth, the mercury which is present in the bulb starts rising from it, and it crosses the kink and it slightly rises, and if it reaches to this point, then this is your normal body temperature. But if it crosses this point and reaches to this or this or this or this, then you might be having fever. Okay, so we have studied it in the previous class. Today we will start with the next topic, which is known as laboratory thermometer. Okay, so what is laboratory thermometer? Laboratory thermometer is the thermometer which is used in laboratory. The thermometer which is used in laboratory to measure the temperature of different solutions or solvents, then it is called as the laboratory thermometer. Laboratory thermometer की जो range होती है that is from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. So we have studied the clinical thermometer. Clinical thermometer की range क्या थी? 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक थी, ठीक है। और जो आपका लेबोरेटरी में यूज किया जाने वाला जो थर्मोमीटर है दैट रेंजेस फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कोई अगर मेजर कर सकता है तो दैट इज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। Another type of thermometer which is used is the maximum minimum thermometer, ठीक है, maximum minimum thermometer है। It is used to measure the maximum temperature and minimum temperature of the day, यानी कि जो maximum temperature क्या हुआ एक दिन का, जैसे हम कहते हैं ना कि आज जो है इतना, जब हम temperature की forecasting करते हैं तो जो weather forecasting department वाले हैं वो कहते हैं कि आज maximum temperature इतना रहने वाला है या minimum temperature इतना रहने वाला है, तो उसके लिए एक अलग टाइप का थर्मोमीटर होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, जो कि एक दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको बताता है, ठीक है। इन वेदर रिपोर्ट्स टेम्परेचर रिपोर्टेड इन डिफरेंट सिटीज इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि एक सिटी का अगर हमें टेम्परेचर बताना है कि उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है या उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना है, तो वो हम किसकी हेल्प से पता लगाते हैं?
वो हम बताते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर की हेल्प से। देन कम्स द डिजिटल थर्मोमीटर। आजकल लोग क्या करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं, जो कि जिससे जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर आपका मिलता है दैट इज क्विकली आपको मिल जाता है। कि कई लोग जो होते हैं वो किंक को नहीं देख पाते, या जो थ्रेड होता है मर्क्यूरी का उसको नहीं देख पाते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर में। तो इन दैट केस पीपल ऑल्सो यूज दिस हाईटेक थर्मोमीटर विच इज नोन एज द डिजिटल थर्मोमीटर। मर्क्यूरी जो होता है इट इज टॉक्सिक इन नेचर, एवरीबडी नोज, ठीक है। अगर गलती से भी वो हमने कंज्यूम कर लिया तो इट माइट क्रिएट सर्टेन प्रॉब्लम इन आवर बॉडी, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का ड्रॉबैक है। सो इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स, अगर थर्मोमीटर टूट जाता है आपके मुंह में, तो मर्करी को डिस्पोज ऑफ करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इन दैट केस इसलिए हम लोग आजकल क्या यूज करते हैं, जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर मर्क्यूरी नहीं होता। इसके अंदर बॉडी सेंसर्स को, इसके अंदर सेंसर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करके हमारा टेम्परेचर जो है वो बताते हैं। तो इसके अंदर 37 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, दैट इज आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको प्रेस करके इसको मुंह के अंदर रख दिया जाता है, और मुंह के अंदर रखने के बाद 1 या 2 सेकंड के अंदर बीप की साउंड हमें सुनाई देती है। तो दैट मीन्स इसने आपके बॉडी के टेम्परेचर को सेंस कर लिया है। फिर हम इसे मुंह से निकाल कर और यहाँ पर रीडिंग देख लेते हैं। तो इजी भी है और क्विक भी है एज कम्पेयर टू द क्लिनिकल थर्मोमीटर, राइट। तो इस तरह से डिजिटल थर्मोमीटर्स को भी यूज किया जाता है। ओके, अब हमें थर्मोमीटर को यूज करते टाइम ना, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो चाहे कोई सा भी थर्मोमीटर हो, हमें उसको यूज करते टाइम बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो थर्मोमीटर बल्ब को प्रॉपरली हमें टंग के नीचे, अंडर योर टंग या आर्म फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर था उसका क्या ड्रॉबैक था कि थर्मोमीटर लो उसको जीभ के नीचे रखना पड़ता था या हमें अपने अंडर आर्म में रखना पड़ता था, ठीक है, 1 मिनट के लिए। तो कभी कभार बच्चों को डिफिकल्टी भी आती थी उसको होल्ड करने में, ठीक है। टू रीड द टेम्परेचर कीप द थर्मोमीटर एट आई लेवल। अब आपको जब थर्मोमीटर, अब आपने थर्मोमीटर को मुंह में से निकाल लिया है, जब आपने टेम्परेचर आपका 1 मिनट तक आपने थर्मोमीटर को मुंह में रख लिया है, उसके बाद आप उसको मुंह में से निकालेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट रीडिंग द रीडिंग। आप मर्क्यूरी लेवल को देखोगे कि कहाँ तक वो पहुंचा है। तो कभी कभार जो होता है कि आई लेवल को हमें उसके बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट रखना पड़ता है, कि बिल्कुल उसके सामने रखना पड़ता है। तो कभी कभार कुछ लोग रीडिंग ले भी पाते हैं और कुछ लोग नहीं भी ले पाते हैं, तो ये भी इसका ड्रॉबैक था। ऑलवेज हैंडल द थर्मोमीटर केयरफुली। हमें केयरफुली उसे हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि अगर बाई चांस वो हमसे नीचे गिर गया तो वो थर्मोमीटर टूट सकता है, और वो ग्लास का है, और उसमें से जो मर्क्यूरी निकल कर बाहर आएगा इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डिस्पोज। उसको डिस्पोज करना मुश्किल हो जाता है। और थर्मोमीटर को कभी भी हमें उसकी बल्ब से होल्ड नहीं करना चाहिए। यहाँ से हमें, चाहे वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो चाहे क्लिनिकल थर्मोमीटर हो, कभी भी यहाँ से हमें नहीं पकड़ना चाहिए उसको, ठीक है। तो इस तरह से ये हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए व्हेनेवर यू यूज एनी काइंड ऑफ थर्मोमीटर, ठीक है। देन प्रिकॉशंस विच आर नीडेड। अब वो तो थे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब आप यूज करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए, एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस विच यू हैव टू टेक व्हाइल यूजिंग द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को जब आप यूज करेंगे तब आप किस तरह के प्रिकॉशंस लेंगे? प्रिकॉशंस विच आर नीडेड व्हाइल टेकिंग द टेम्परेचर विद द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो वो सेम है जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर को जो प्रिकॉशंस हमें चाहिए होते हैं वही हमें यहाँ पर करने होंगे। कि हमें जब भी रीडिंग लेंगे तब हम उसको अपने आई लेवल के सामने रखेंगे, हमें कभी भी बल्ब से उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, हमें उसको प्रॉपरली होल्ड करना चाहिए ताकि वो नीचे ना गिरे, क्योंकि उसमें से जो मर्क्यूरी निकलेगा उसको डिफिकल्टी हो जाएगी डिस्पोज करने में, ठीक है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना चाहिए? लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हमें हमेशा अपराइट रखना चाहिए, यानी कि सीधा रखना चाहिए, एंड नॉट टिल्टेड। कभी ऐसे 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 नहीं रखना चाहिए, सीधा हमें उसको हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। और जब भी हम किसी टेम्परेचर, किसी भी सॉल्यूशन का या किसी भी सॉल्वेंट का टेम्परेचर लेना चाहें ना, तो उसको, थर्मोमीटर को हमें उसके अंदर प्रॉपरली डिप करना चाहिए, ठीक है। जिसका भी टेम्परेचर हमें लेना है ना, उसके अंदर उसको प्रॉपरली डिप करो, क्योंकि अदरवाइज टेम्परेचर उसके अंदर सही नहीं आएगा। तो बल्ब शुड नॉट टच द बेस और द साइड ऑफ द कंटेनर। जब भी हम किसी का टेम्परेचर लेना, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके, जिस भी कंटेनर का टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ का ले रहे हैं,
तो हमारा जो बल्ब है ना, उसका जो बल्ब है थर्मोमीटर का, वो कंटेनर के बेस को टच नहीं करना चाहिए या उसकी साइड को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बल्ब है उस केस में खराब हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब प्रिकॉशन सेम है जो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मर्क्यूरी यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हुए हम देखेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर पर जब हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर को रखते हैं तो उसका मरकरी के ऊपर क्या अफेक्ट होता है। यानी कि मरकरी जो कि थर्मोमीटर के बल्ब में है, उसको अगर हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पर रखेंगे तो इस मर्क्यूरी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये हम इसके अंदर देखेंगे। तो हमने 3 कॉनिकल फ्लास्क ली। एक में है टैप वाटर, यानी कि नॉर्मल जो आपके नल का पानी आता है वो है। दूसरा है आइसी कोल्ड वाटर, यानी कि बिल्कुल ठंडा पानी। तीसरा है हॉट वाटर, यानी कि गर्म पानी। तीनों कॉनिकल फ्लास्क, यानी कि कोन शेप्ड फ्लास्क लिए हम लोगों ने, इनको कॉनिकल फ्लास्क बोला जाता है। अब फर्स्ट फ्लास्क में आप क्या करेंगे, 100 ml टैप वाटर डालेंगे। कितना? 100 ml, 100 ml आपने यहाँ पर डाला टैप वाटर, 100 ml डाला। ठीक है, सेकंड में भी आप 100 ml आइसी कोल्ड वाटर डालेंगे, और थर्ड में आप 100 ml कितना डालेंगे, हॉट वाटर डालेंगे, एकदम गर्म खौलता हुआ पानी, तेज गर्म पानी डालेंगे। ठीक है, थर्ड बीकर में आपने डाल दिया, थर्ड फ्लास्क में डाल दिया। अब क्या करेंगे, पुट अ रबर स्टॉपर विद अ होल 1 in each। अब आप रबर स्टॉपर लिए, रबर का स्टॉपर है, ये भी रबर का स्टॉपर है और ये भी रबर का स्टॉपर है। इन सब के अंदर होल है। कितना होल है, जितना कि आपका थर्मोमीटर इसके अंदर जा पाए। ठीक है, 1 by 1 डिप द लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन द 3 फ्लास्क। तीनों के अंदर आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को एक एक करके डिप करेंगे, लाइक पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका थर्मोमीटर है ना, इस बेस को टच नहीं करना चाहिए या इसकी साइड को टच नहीं करना चाहिए। मतलब इतना होना चाहिए कि बस यहाँ तक पहुंच जाए, इतना कि यहाँ तक। देखो यहाँ भी, यहाँ तक दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी आप थर्मोमीटर लेंगे, उसको यहीं तक डिप करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन में अच्छे से डिप होना चाहिए, लेकिन यहाँ टच नहीं करना चाहिए और यहाँ या साइड्स में टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आप रिकॉर्ड करोगे इनके टेम्परेचर को। ठीक है, और रिकॉर्ड करने से पहले आप मरकरी की मूवमेंट देखोगे, इसके अंदर देखोगे, इसके अंदर भी देखोगे और इसके अंदर भी देखोगे। तीनों केसेस में आप मरकरी की मूवमेंट देखोगे। ठीक है, और फिर टेम्परेचर को नोट डाउन करोगे टेबल के अंदर। तो जब हम टेम्परेचर को नोट डाउन करते हैं टेबल के अंदर, तो हमें पता चलता है कि टैप वाटर का टेम्परेचर कुछ और है, मतलब इसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। ठीक है, आइसी कोल्ड वाटर का टेम्परेचर जो है टैप वाटर से और भी कम होगा, और जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, कितना होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। और एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग निकालते हैं कि जब हीट करते हैं ना, हीटिंग करते हैं जब हम लोग, यानी कि हॉट वाटर में मर्क्यूरी जो होगा ना वो एक्सपैंड करता है। किसी भी चीज को जब आप हीट करते हो तो वो क्या करती है, कोई भी चीज क्या होती है, एक्सपैंड करती है। लेकिन जब किसी चीज को हम ठंडा करते हैं तो वही चीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो अब आपने क्या ऑब्जर्वेशन निकाली होगी, ऑब्जर्वेशन ये निकल कर आएगी कि हॉट वाटर में मर्क्यूरी जो है ना वो क्या कर जाता है, वो एक्सपैंड करता है, लेकिन यानी कि फैल जाता है। और जब हम कूलिंग करते हैं वही मर्क्यूरी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि जब हम किसी चीज को, किसी गर्म चीज को छूते हैं या कभी हम किसी ठंडी चीज को छूते हैं, तो उस केस में हीट का ट्रांसफर हमारे अंदर या उस कंटेनर के अंदर कैसे होता है, हम इसको पढ़ेंगे। You might have observed a frying pan becomes hot when it is kept on a flame। आपने देखा होगा कि जब हम लोग गैस पर कोई पैन को रखते हैं या कोई भी यूटेंसिल को रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है कि आपने क्या किया, एक पैन लिया,
ठीक है, ये पैन ले लिया आपने, इसके ऊपर यहाँ हैंडल लगा हुआ है और आपने उसको क्या रखा, इस पे रखा, गर्म होने के लिए रखा गैस पे। तो मान लीजिए आपने इसको गर्म होने के लिए गैस पे रखा, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ से जो हीट एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, यहाँ से जो हीट एनर्जी थी, ये जो फ्लेम निकल कर आ रही है, ये हीट एनर्जी क्या करेगी, इस वेसल को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। कैसे, क्योंकि हीट जो है ना वो यहाँ से निकलकर यहाँ पर पैन के अंदर ट्रांसफर हो गई है। तो हीट कहाँ से ट्रांसफर हो गई है, हीट हैज ट्रांसफर्ड, कहाँ से ट्रांसफर हो गई है, वो ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम फायर या फ्लेम टू द पैन, पैन के अंदर हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई है। और यहाँ से जब आप इस पैन को, गरम गरम पैन को बाय चांस आपने टच कर लिया, तो इस पैन से जो हीट एनर्जी है वो अब आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और वो चीज हमें क्या लगेगी, गर्म लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि it is because you might have observed that a frying pan becomes hot when it is kept on a flame, जब हम इसको फ्लेम पर रखते हैं तो ये गर्म हो जाता है। इट इज बिकॉज ये जो हीट है वो हीट कहाँ से ट्रांसफर हो गई, इस फ्लेम से इस पैन के अंदर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, एंड व्हेन द पैन इज रिमूव फ्रॉम द फायर, और जब हम इस पैन को अगर फायर से रिमूव कर देंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। तो ये ठंडा क्यों हो जाता है, व्हाई डज इट कूल डाउन, तो अब हीट जो, जब आपने इसको यहाँ से उतार कर इस पैन को यहाँ पर रख दिया, जब आपने इस पैन को उतार कर यहाँ पर रख दिया, तो इसकी जो हीट एनर्जी थी ना वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, सराउंडिंग्स में ट्रांसफर हो जाएगी। आपने इसको जिस भी जगह पर रखा होगा ये हीट उस, एक तो उस सरफेस को दे देगी। ठीक है, मान लीजिए आपने इसको रखा, जमीन पर रखा, तो कुछ हीट एनर्जी तो है वो जमीन में ट्रांसफर हो जाएगी और कुछ कहाँ चली जाएगी, एयर में चली जाएगी और ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस चीज से आप क्या समझते हैं, इस चीज से हम ये समझते हैं कि हीट जो होती है ना, इट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। कहाँ से, हॉटर ऑब्जेक्ट से कहां पर हो जाती है, कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे स्टेटमेंट को कि कैसे हॉटर से कोल्डर की तरफ शिफ्ट हुई। देखिए, जब हमने इस पैन को हीट किया, तो पैन को हीट किया तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुई, हीट ट्रांसफर हुई इस फ्लेम से इस पैन के अंदर। ठीक है, और जब आपने इसको छुआ तो हीट एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर हो गई, इस पैन से आपके हाथ के अंदर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, तो हीट एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर हुई। फिर दूसरे केस में क्या किया हम लोगों ने, इस पैन को जो कि गर्म हो गया था, जिसके अंदर हीट आ गई थी, उसको जब आप नीचे रखोगे तो नीचे रखने पर क्या होगा, इसकी जो हीट होगी इस पैन की, क्योंकि ये हीट हो गया था, तो इसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, कुछ तो जमीन में ट्रांसफर हो जाएगी जहां पर भी आपने इसको रखा है, और कुछ हो जाएगी सराउंडिंग्स में, कहां पर, एयर में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरह से हीट एनर्जी अब बाहर, जो जैसे कि हमने जब इसको छुआ था तो हमारा हाथ क्या था, ठंडा था, लेकिन ये पैन क्या था, गर्म था। तो हीट कहाँ से ट्रांसफर हुई, आप इस पैन से आपके हाथ में ट्रांसफर हुई। सिमिलरली यहाँ पर जब पैन गर्म था, हमने इसको जब जमीन पर रखा तो सराउंडिंग्स क्या थे, कोल्डर थे, यानी कि थोड़े से ठंडे थे एज कंपेयर टू दिस पैन। तो हीट कहाँ ट्रांसफर हुई, इस हॉट पैन से इस कोल्ड सराउंडिंग्स में हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई। तो इस चीज से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, इस चीज से हम ये कंक्लूड करते हैं कि सभी केसेस में हीट जो होती है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर की तरफ जाती है, हॉटर से कोल्डर की तरफ जाती है, क्या जाती है, हीट एनर्जी, राइट। तो स्टेटमेंट से हम लोग ये चीज कंक्लूड करते हैं। ओके, अब एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रॉड लेते हैं, ठीक है, या एक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, आयरन की बनी हुई हो या एल्यूमिनियम की बनी हुई हो। उसको क्या करोगे आप, उसको फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड। आप क्या करेंगे, कुछ आपने मान लीजिए आयरन की रॉड ले ली, इस तरह से आयरन की रॉड ले ली, ठीक है, इस तरह से, और आपने क्या किया, उसके ऊपर
कुछ एक वैक्स पीसेस को स्टिक कर दिया, कुछ एक वैक्स के पीसेस को आपने स्टिक कर दिया। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, उनको इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस उनके बीच में बराबर होना चाहिए। क्लैम्प द रोड टू अ स्टैंड, अब उसको हम एक स्टैंड की हेल्प से इसको हम लोग बांध देंगे, ठीक है। इफ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक्स, अगर आपको स्टैंड नहीं मिल रहा तो दो ब्रिक्स यानी कि दो ईंटों के बीच में भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो आप एक एंड को जब आप हीट करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, एक एंड को हीट करेंगे। जब आप एक एंड को हीट करेंगे ना, जैसे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, तो हमने एक मेटल की रॉड ले ली, दो ईंट ले ली, दो ब्रिक्स ले ली और उसको फिक्स कर दिया हम लोगों ने। फिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, एक एंड से हम लोग कैंडल की हेल्प से इसे हीट करना चालू करें। देन व्हाट विल यू फाइंड दैट स्लोली स्लोली जो पहले वाला वैक्स मेल्ट होगा, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरा, फिर चौथा और पांचवा। तो इस चीज से आप क्या चीज कंक्लूड करते हैं कि हीट जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है। पहले जब हमने इसको यहाँ पर इसको हीट किया तो ये वाला पोर्शन हीट हुआ, यहाँ से हीट एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर हुई, क्योंकि अब ये गर्म हो गया और ये क्या है, ठंडा है इसके कंपैरिजन में। तो हीट एनर्जी हमने कहाँ पता है, हमें पता है कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, हॉटर से कोल्डर की तरफ। तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये हीट हो जाएगा, अब ये कोल्ड है तो हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, फिर यहाँ से फिर यहाँ फिर यहाँ। तो सिमिलरली पूरी रॉड फिर जो है वो हीटअप हो जाती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो वैक्स क्या हो रहा है, मेल्ट होकर नीचे की तरफ गिर रहा है। तो इस बात से हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं, इस चीज से हम लोग ये चीज कंक्लूड करते हैं कि जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी हॉटर टू दी कोल्डर एनवायरनमेंट। हॉट से कोल्ड की तरफ जो है वो हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी हॉटर टू दी कोल्डर एंड, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। क्या बोलेंगे, कंडक्शन। यानी कि वो प्रोसेस जिससे हीट एनर्जी किसी हॉट ऑब्जेक्ट से किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। क्या बोलेंगे, कंडक्शन। सॉलिड्स के अंदर हीट एनर्जी जनरली जो है वो कंडक्शन से ही ट्रांसफर होती है, ठीक है। कहाँ से ट्रांसफर होती है, कंडक्शन से ही, राइट। तो इस तरह से हमने आज थोड़ा सा कंडक्शन के बारे में पढ़ा। बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।